Hello everyone, this is Dr. Ranjana. In our previous lecture, we have learned frequency distribution, formation of discrete frequency distribution and formation of grouped or the continuous frequency distribution. So now in this topic, we will discuss exclusive method, inclusive method for classification according to class interval. यानी जो भी continuous distribution हम बनाएंगे frequency distribution, उसमें किस तरीके से exclusive method और inclusive method को use करेंगे, open ended classes के बारे में हम सीखेंगे. तो आज हम ये तीन टॉपिक कवर करेंगे: exclusive method, inclusive method and open ended class for classification according to class interval. So let us start. Before starting the concept or the methods of exclusive class interval and inclusive class interval, first we know about what are the class limits, what are the class interval, what are the class frequencies and so on. So here are some technical terms when data are classified according to class interval. First one is class limits. Class limits क्या होती हैं? जब हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि किस तरीके से हम जो क्लासेस हैं वो फॉर्म करते हैं. तो उनमें क्लास लिमिट्स क्या होती हैं उनके बारे में आपको बताएंगे. द क्लास लिमिट्स आर द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द क्लास. सपोज वी हैव टू टेक अ क्लास 20 to 40. अगर हमने 20 से 40 यानी 20 to 40 अगर हमने कोई क्लास लिया है, देन व्हाट आर द क्लास लिमिट्स? 20 and 40. Then 20 is known as the lower limit of the class and 40 is the higher limit of the class. तो इसे lower boundary बोलते हैं और इसे upper boundary बोलते हैं. Lowest value in this class is 20 and the highest value is 40. So the two boundaries of a class are known as lower limit and the upper limit of the class. 20 lower limit हो गई और 40 जो है वो हमारी upper limit हो गई क्लास की. तो इसी तरीके से different classes में हर एक क्लास की एक lower limit होती है और एक upper limit होती है. Next is class interval. What is class interval? The span or the distance, the span of the class, that is the difference between the upper limit and the lower limit, is known as the class interval. अगर किसी भी क्लास में पर्टिकुलर क्लास, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया 20 to 40, तो अगर 20 to 40 में अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें यानी 40 minus 20, देन यू विल फाइंड द क्लास इंटरवल. तो जो क्लास इंटरवल है, हो सकता है हमारे जो क्लास ग्रुप्स हमने बनाए हैं वो सारे इक्वल क्लास इंटरवल के हों और हो सकता है वो डिफर भी करते हो. तो हमेशा हमें कोई भी क्लास अगर दे रखी है उसका इंटरवल कैसे निकालना है? हमें निकालना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास. सो इन दैट केस 20 to 40 इस क्लास का जो इंटरवल है, क्लास के बीच की जो डिफरेंस है वो है 20. 40 minus 20 दैट इज 20. So this is known as class interval. Next is class frequency. The number of observations corresponding to the particular class is known as the frequency of that particular class or the class frequency. Frequency means any number, any item occur how many times. That number is known as the frequency. So what is class frequency? The frequency of that particular class. अगर किसी particular class के आगे उसकी frequency लिखी है तो उसको हम class frequency बोलते हैं. तो the number of observations corresponding to the particular class is known as frequency of that class. Next is class midpoint. अगर हमारे पास क्लासेस दे रखे हैं तो उनके मिड पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं? इन द क्लास मिड पॉइंट, इट इज द वैल्यू लाइंग हाफ वे बिटवीन द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल. तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्लास का मिड पॉइंट निकालना है, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला अपर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज वी हैव टू वैल्यूज, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. और अगर हम उसका एवरेज निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? 2 से डिवाइड करके. तो अपर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड डिवाइडेड बाय 2. तो अगर आपके पास, अगर ये क्लास है 40 to 20, अगर आपके पास 40 to 20 to 40 आपकी क्लास है, तो उस केस में जो मिड पॉइंट होगा वो क्या हो गया? 40 plus 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30. तो 20 plus 40 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो वो आपका आ गया 30. तो 30 जो है वो क्लास मिड पॉइंट हो गया. तो इसी तरीके से हम हर एक क्लास का, ईच क्लास का हम क्या निकाल सकते हैं? क्लास मिड पॉइंट निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर टू मेथड्स ऑफ क्लासिफाइंग द डेटा अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल. हमारे पास दो मेथड्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे जैसे हम क्लास इंटरवल फॉर्म करते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड. तो पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव मेथड के बारे में और इंक्लूसिव मेथड के बारे में, और फिर हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, हम किस तरीके से एक्सक्लूसिव क्लास को
इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव मेथड, पहले हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लूसिव मेथड। ध्यान से देखिए, व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर सो फिक्स्ड दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इज नोन एज एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी जब आप क्लास इंटरवल्स बना रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपने कौन सा मेथड यूज किया है, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव, ये आपको कैसे पहचानना है। ये देखिए, ये हमने एक डेटा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, इनकम और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हियर इनकम इज द वेरिएबल जिसको हमने ग्रुपिंग किया है, मीन्स क्लास इंटरवल्स बनाए हुए हैं, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर इनकम ग्रुप पीपल। तो पहला हमारा क्लास है 5000 to 6000, नेक्स्ट इज 6000 to 7000, 7000 to 8000। इसी तरीके से हमने क्लास इंटरवल्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ आपको एक चीज कॉमन दिख रही है कि जो फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है आपकी 5000 to 6000, इसकी जो अपर बाउंड्री है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो जो अपर लिमिट है पहली क्लास की, वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर है। आप हमेशा इसमें देखेंगे, जैसे सेकेंड क्लास पे आइए, सेकेंड क्लास की अपर लिमिट उसकी नेक्स्ट क्लास की यानी थर्ड क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल है। और अगर ऐसा है, अगर ये क्रॉस में ये दोनों चीजें बराबर हैं, अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, तो उस मेथड को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो आपने क्लासिफिकेशन इनकम का किया है, दैट इज एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है। एंड दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो ये हम जब भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमने एक्सक्लूसिव मेथड यूज किया है और इंक्लूसिव मेथड। अब एक्सक्लूसिव मेथड में ये जो 6000 है, इसको एक्सक्लूड किया गया है फर्स्ट क्लास में। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि 6000 कंफ्यूजन ये होता है कि 6000 फर्स्ट क्लास में भी दिया है और सेकंड क्लास में भी दिया है। तो अगर किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की इनकम 6000 है, तो उसे हम इस ग्रुप में उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे या फिर सेकेंड ग्रुप में करेंगे। तो ये आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव मेथड जो होता है, उसमें फर्स्ट क्लास में अगर 6000 है तो उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया। इंक्लूड उसे सेकंड क्लास में किया गया, जहां पर वो लोअर लिमिट के इक्वल है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो जितनी भी लोअर लिमिट्स है वो तो इसमें इन है, मतलब उनको इंक्लूड किया गया है, और जितनी भी ये आप यहाँ देख रहे हैं, इनकी जो अपर लिमिट्स है उनको एक्सक्लूड किया गया है। यानी यहाँ पे 6000 एक्सक्लूड है। आप यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे 5999.999 तक रख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 6000 अगर आएगा तो उसे सेकंड क्लास में रखेंगे। इसी तरीके से अगर 7000 है तो उसे यहाँ रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से हम एक्सक्लूसिव मेथड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड में क्या करना है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में डिफरेंस क्या है, ये भी हमें देखना है। तो जो डिफरेंस है वो आपको बताते हैं, आपको देखने से पता चलेगा कुछ। अंडर द इंक्लूसिव मेथड द क्लासिफिकेशन बोथ द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास आर इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ। जैसे आप देखेंगे 500 to 599, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है 500 to 599, एंड द नेक्स्ट क्लास इज 600 to 699, 500 to 599 एंड 600 to 699। यानी यहाँ जो 599 है उसको एक्सक्लूड नहीं किया गया, उसको इंक्लूड किया गया, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की और जो लोअर लिमिट है नेक्स्ट क्लास की वो अलग अलग है। 599 एंड 600, द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 599, ठीक है। तो जो इंक्लूसिव मेथड है उसमें लोअर लिमिट को भी और अपर लिमिट दोनों को ही इंक्लूड किया गया है क्लास के अंदर। क्लास के अंदर 500 भी है, 599 भी है, 600 भी है, 699 भी है। फर्स्ट क्लास में जो भी आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रखेंगे वो कौन से रखेंगे, जहां इनकम 500 से शुरू होकर 599 तक होगी, और नेक्स्ट क्लास में 600 से 699। तो इसी तरीके से आप जो इंक्लूसिव क्लास हैं उनको जेनरेट कर सकते हैं। दीज आर द नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स द फ्रीक्वेंसीज। इसमें अब आपको ये देखना है कि अगर आपके पास एक्सक्लूसिव क्लासेस है और इंक्लूसिव क्लासेस है, तो आप इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास कैसे बनाएंगे, क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है, ये भी आपको बता दें। जैसे सपोज करिए अभी आपके पास ये दो मेथड से आपने पढ़े। अब इसमें अगर हम कहें, ये तो कंटिन्यूस मेथड है, देखो 5000 to 6000, 6000 to 7000, यानी आप इसमें कोई भी वैल्यू स्किप नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप यहां देख रहे हैं 500 to 599, उसके बाद है 600। तो अगर 599.99 होगा तो आप उसे कहां रखेंगे, तो उस केस में आप इंक्लूसिव
मेथड को एक्सक्लूसिव मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इंक्लूसिव मेथड को एक्सक्लूसिव मेथड में चेंज करना सीखते हैं। ये हमारी इंक्लूसिव क्लासेस हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया बिल्कुल वही एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। आप देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, यानी हमें लेना है 600 और 599 का डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक डिफरेंस निकालना है। दैट डिफरेंस इज व्हाट, द वैल्यू the upper limit of the first class and the lower limit of the next class, the difference between these two values। क्योंकि एक्सक्लूसिव क्लास में तो ये दोनों सेम होती है, अब हमें सेम बनानी है। तो सेम बनाने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और उसका हाफ करना है। हाफ इसलिए करना है कि क्योंकि जो ये अमाउंट आएगा उसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोअर लिमिट में भी करना पड़ेगा और उसे अपर लिमिट में भी करना है। तो कैसे करना है ये देखिए, 600 माइनस 599 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 0.05। यहां हमने लिखा है अमाउंट दैट वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 600 माइनस 599 डिवाइडेड बाई 2, यानी 0.5। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट हमने जनरेट किया है 0.05, इसका क्या करना है, इसी अमाउंट से हम अपनी इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस अमाउंट को 0.05 को आपको जो लोअर लिमिट्स हैं उनमें तो सब्ट्रैक्ट करना है और जितनी भी अपर लिमिट्स हैं उनमें ऐड करना है। यानी 500 माइनस 0.5, ये 0.5 है, सॉरी 1/2 0.5 गड़बड़ हो गया, 0.5, 500 माइनस 0.5 और 599 प्लस 0.5, यानी लोअर लिमिट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 500 माइनस 0.5, तो यू विल गेट 499.5, और अगर आपने 599 में 0.5 ऐड किया तो 599.5। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे आते हैं। 600 माइनस 0.5 इज 599.5 एंड 699 प्लस 0.5 इज 699.5। तो अब आप देख रहे हैं ये दोनों क्लासेस सेम हो चुकी हैं, यानी ये एक्सक्लूसिव बन चुका है। जो आपका इंक्लूसिव क्लास इंटरवल था जिसमें कि एक का डिफरेंस था अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास में, अब आप देख रहे हैं अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास या नेक्स्ट क्लास इज सेम। ठीक है, इस तरीके से आप क्लासेस को इक्वल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाने के लिए द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, जो भी नंबर आपको अमाउंट मिलता है उसको लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट में से, और उसे अपर लिमिट के साथ ऐड करना है। इस तरीके से आपको एक्सक्लूसिव क्लासेस मिल जाते हैं। सो दिस मेथड इज वेरी इजी, आपको आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ओपन एंडेड क्लासेस के बारे में। व्हाट आर ओपन एंडेड क्लासेस? ओपन एंड क्लास क्या होती है? जनरली क्या होता है, क्लास इंटरवल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जैसे 1000 to 2000, 2000 to 3000 या 100 to 150, 150 to 200 and so on. If they are not uniform, it is difficult to make a meaningful comparison between the classes. अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उनमें कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या होता है, बट एक्सट्रीम आइटम्स में रिक्वायर द इंक्लूजन ऑफ द लार्ज नंबर्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स विच मे मेक्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनवाइडली। जैसे कि अगर आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, क्लासेस फॉर एनुअल इनकम हमने यहाँ पे दिया है 1000 to 2000, 2000 to 3000, 3000 to 4000 एंड सो ऑन। अब लास्ट में हमने दिए हैं कुछ क्लासेस 8000 to 9000 और लास्ट हमने दिया 9000 एंड अबव। 9000 एंड अबव, इसका मतलब यह क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिन लोगों की जो एनुअल इनकम है वो 1000 से 2000 के बीच में है वो फर्स्ट क्लास में आ गए, 2000 से 3000 है तो वो सेकंड में आ गए, इसी तरीके से 8000 से 9000 तक है वो इस क्लास में आ गए। लेकिन 9000 और 9000 से ऊपर जिनकी भी इनकम है या एनुअल इनकम है, मान लीजिए वो 10,000 हो या 11,000 हो या 12,000 हो, वो सब किस में आएंगे, लास्ट वाली क्लास में। तो ये जो आप क्लास देख रहे हैं दिस इज ओपन एंडेड। ओपन एंड का मतलब इसे फिक्स नहीं किया गया है, इसे 9000 से 10,000 नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि सपोज करिए अगर आपके पास, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं, the classification will become unwieldy if we construct more classes to include a family whose income is 30,000। सपोज करिए किसी की एनुअल इनकम 30,000 है और हमारा जो क्लासेस हैं वो 8 से 9,000 के बीच में। अब हम लिखेंगे 9,000 से 10,000 कोई भी व्यक्ति नहीं है, 10,000 से 11,000 कोई नहीं है, 11 से 12 कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनवाइडली रहेगा। तो हमने क्या किया, 30,000 को हमने किस रेंज में डाल दिया, 9,000 से
ऊपर, 9000 और 9000 से ऊपर, यानी अब 9000 से ऊपर जितने भी लोग आएंगे वो सब इसी ग्रुप में आएंगे। जिनकी सैलरी या एनुअल इनकम जो है वो 9000 या 9000 से ज्यादा है वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। तो दीज क्लासिफिकेशन और द क्लासेस आर नोन एज ओपन एंडेड। तो जो ओपन एंडेड है वो हम यहाँ नीचे भी कर सकते हैं, लास्ट क्लास में भी कर सकते हैं और इनिशियल क्लास में भी हम कर सकते हैं। लाइक हम ये भी कर सकते हैं बिलो 2000, तो बिलो 2000 में 0 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ओपन एंडेड क्लासेस बना सकते हैं। तो आज हम जो लेक्चर है, हमने अपने लेक्चर में 3 चीजें सीखी हैं। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, जिसमें पहला मेथड हमने सीखा एक्सक्लूसिव मेथड, दूसरा मेथड हमने सीखा इंक्लूसिव मेथड, फिर कन्वर्जन हमने सीखा इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव एंड ओपन एंडेड क्लासेस। तो आज हमारे लेक्चर में हमने ये 3 चीजें सीखी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे किस तरीके से आपको जनरेट करना है, जिसमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना है। आप जो भी पुराने वीडियोस या पहले के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप उस पे जो लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।